Are you preparing for the Biology NEET exam and looking for some helpful resources to revise the Living World concept? Ignited Minds Tutorials has got you covered with their informative video series upload dedicated to Biology NEET Revision. In this video series, you will dive deep into the concepts of the living world, covering topics like classification of living organisms, biodiversity, and ecological adaptations. The tutorials will also include practice questions to help you prepare for potential questions in the exam. By revising key concepts and solving previous year's question papers related to the living world, you will enhance your understanding and boost your confidence for the NEET exam. Ignited Minds Tutorials aims to ignite your mind with knowledge and help you succeed in your academic journey. So don't miss out on this opportunity to sharpen your biology skills and ace the NEET exam. Subscribe to Ignited Minds Tutorials today and start your Biology NEET revision journey with the living world. So today we will be starting NEET revisions. Okay. So to start with or begin with, we will be dealing with the first chapter in 11th standard. That is living world and its diversity. तो हम सबको पता है बहुत सारे organism है दुनिया में. Biodiversity is very much bigger. And no need to teach you what is biodiversity because एक पूरा chapter पढ़ के आया. Okay. तो biodiversity बहुत ज्यादा है. तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, उसको क्लासिफाई करना मुश्किल है, नेम करना मुश्किल है ना. तो ये सब क्यों करता है? बिकॉज टू साइंटिफिकली स्टडी दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, so in this chapter we will be discussing upon two different concepts. What is classification, what is taxonomy, what is nomenclature. These are one. Another one, what is systematics. So taxonomy and systematics, these are the two important concepts which we are going to study in this chapter. Okay, so to start this chapter, the first question we have to answer is एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ लाइफ और चीफ साइन ऑफ लाइफ क्या होता है, वो हम सबसे पहले क्या करना है, आंसर करना है. So can you say any 2 or 3 features by which we can define an organism? हाँ, वो जिंदा है या वो मर गया है या नॉन लिविंग है. कैसे? रेस्पिरेशन. हाँ, रेस्पिरेशन कर रहा है तो रेस्पिरेशन इज बिलोंगिंग टू दैट मेटाबॉलिज्म, राइट? ओके, रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल फॉर मेटाबॉलिज्म. So you told one excellent answer. अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो that organism is living. Well done. Any other? Reproduction. Yes, reproduction is also one character of living organism. But अगर एक इनफर्टाइल कपल को तुमने देखा, उसको जाके बोल रहा है तुमको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, मतलब तुम जिंदा नहीं है, तुम ऑलरेडी नॉन लिविंग है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ना. So we cannot say that reproduction is the defining character. It is not a defining character, but it is one of the sign of life. Anyway, metabolism or consciousness or cellular organization, cell become tissues, tissues become organ, that process चल रहा है तो भी वो क्या है, जिंदा है. So we can say there are 3 important defining characters. एक है मेटाबॉलिज्म, एक है कॉन्शियसनेस. ओके, तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रोथ इज देयर, रिप्रोडक्शन इज आल्सो देयर. ओके, these are also a sign of life but not the defining character. Let's start. Okay, so what is growth? उससे हम शुरू करते हैं. Growth is the increase in size, increase in the number of cell, increase in the shape of an organism. ये कैसे बोल सकते हैं हमने ग्रो कर लिया है? तो हमारा हाइट बढ़ा है, वेट बढ़ाया है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाया है, ओके, मास बढ़ाया है, तो ये सब चीजें इंडिकेट करता है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, वी कैन से दिस डस्ट, दिस इज नॉट ग्रोइंग unless if I'm not adding anything external, it is not growing, है ना. ग्रोथ कहाँ से आना चाहिए? अंदर से आना चाहिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए. So if you classify growth, we can classify growth into based on 2 characteristics, whether it is coming from inside or it is just outside process. That is called the intrinsic and the extrinsic growth. Another classification is whether it is definite or मतलब unlimited या indefinite मतलब unlimited है या. So we can classify based on
डेफिनिट या इंडेफिनिट, नहीं तो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। पहले हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। ओके, जैसे मैंने बोला हमारा ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है, अंदर से आ रहा है ग्रोथ, है ना। हमारा हैंड्स कैसे लंबा हो रहा है, सेल्स की नंबर अंदर से इंक्रीज हो रहा है ना। कोई बाहर से हैंड की फिंगर्स ऐसे फिक्स नहीं कर रहा है, कुछ बाहर से ऐड नहीं कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इज ऑकरिंग फ्रॉम इनसाइड टू पेरिफेरी, सेंटर से बाहर जा रहा है ग्रोथ। एंड व्हाट अबाउट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? एक्सटेंसिव ग्रोथ, मान लो सैंड ड्यून्स का इमेज दिखाया है हम, जैसे सैंड ड्यून। ओके, डू यू नो व्हाट इज सैंड ड्यून? डेजर्ट्स में होता है, विंड की वजह से डेजर्ट्स में ऐसे सैंड फ्लाई करके क्या होगा, एक जगह पे आके ड्यून्स बनाएंगे। तो इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इट इज जस्ट डिपॉजिटिंग ऑन द सरफेस। तो बाहर ऐसे फिक्स किया तो वो क्या होता है, ग्रो होता है। मान लो इस डेस्क को मैंने थोड़ा और एक वुडन लॉग की पीसेस के साइड में अटैच किया, तो ये ग्रो हो गया ना। लेकिन वो ग्रोथ अंदर से नहीं आया, इट्स नॉट इंट्रिंसिक, इट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। So we can say non-living organism grow by extrinsic growth, लेकिन living organism grow by intrinsic growth. Understood? So glaciers are also growing. Glaciers means that iceberg on Antarctica, Arctica सब region में। तो जब already existing glaciers के ऊपर again water freeze होके उसका size बढ़ रहा है, तो that is also a growth, but it is a extrinsic growth. तो ग्रोथ का दो टाइप्स हमने पढ़ा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। So we cannot say that growth is only for living organisms. It is also there for non-living organism in the form of extrinsic mode, right? Then another classification is whether it is definite or indefinite. हमारा ग्रोथ तो डेफिनिट होता है, डेफिनिट इन द सेंस, एक देखो हमारा लाइफ साइकिल दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम, यू कैन से बोलो क्यों इट इज डेफिनिट? यस, एक एज पे आके रुकता है। उसका ग्राफ देखा तो शुरुआत में कैसा है, बहुत क्विकली ग्रो होता है, रैपिड ग्रोथ देख सकते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, टीनेज, टीनेज में एक पीक में आते हैं ग्रोथ की ग्राफ, है ना। यू नो दैट बिकॉज ऑफ द hormones, testosterone, estrogen, progesterone, lot of physical and physiological changes are happening in our body during adolescence. So at that period we witness what? Spurt in growth. Okay, growth उसके पीक में आ रहा है। So we have studied in 11th standard that 16 एज के बाद facial bones ग्रो नहीं होता है 16 ईयर्स के बाद। तो फेस जितना लंबा है उतना लंबा ही रहेगा आगे। एंड हमारा हाइट तो 19 ईयर्स में जब एडोलेसेंस खत्म होता है उसके आगे हाइट नहीं बढ़ता है। तो हाइट अभी जितना है, 19 ईयर है तो अभी जितना हाइट है उतना हाइट ही रहेगा फ्यूचर लाइफ एंड तक, समझा। तो our height or the increase in growth, that is limited, definite to a particular age. Adolescence के आगे ये सब क्या नहीं होता है, increase नहीं होता है। So our growth is definite. Then plants की जो growth होता है that is indefinite or we can say unlimited growth, है ना। ब्रांचेस बहुत लंबा होता है, एक ब्रांच जितना लंबा है तो दूसरा ब्रांच जितना छोटा होगा। इसी तरह हमारा दोनों हाथ में देखो इक्वल लेंथ है, यूनिफॉर्म है, उसका तो नॉन यूनिफॉर्म है एंड अनलिमिटेड भी होता है, इनडेफिनिट होता है किधर, प्लांट्स में। यस, so growth can be classified upon definite or indefinite, extrinsic or intrinsic. Well done. Yes, and why it is not a defining character of life? Because it is also happening for non-living organisms. Then next is reproduction, the second ideal character which we can define an organism's life is reproduction. तो रिप्रोडक्शन में क्या बेसिकली क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्लांट्स की रिप्रोडक्शन बढ़ा है, एनिमल की रिप्रोडक्शन बढ़ा। रिप्रोडक्शन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड इट इज नॉट नेसेसरी ना, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर वन ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल, है ना। सर्वाइवल के लिए मतलब अभी जो है हम अभी जिंदा है ना, हमारा सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करना इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन होना चाहिए तो कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना चाहिए। सो इट इज नीडेड फॉर, नॉट नीडेड फॉर सर्वाइवल। ओके, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट इट इज एसेंशियल फॉर propagation of population. Yes, so reproduction is not a defining character. क्यों डिफाइनिंग नहीं बोला मैंने, एग्जांपल दिया ना, infertile couples they are also living,
रिप्रोडक्शन सबको नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग भी क्या है, लिविंग है. So reproduction is not a defining character. And we can classify reproduction into two, which we have already studied. A sexual reproduction and a sexual reproduction. तन्वी, asexual reproduction में क्या प्रोड्यूस नहीं होता है? ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है. asexual reproduction ऑफस्प्रिंग्स है, लेकिन गमीट्स नहीं होता है. ओके, गमीटोजेनेसिस इज नॉट देयर एंड फ्यूजन ऑफ द गमीट्स इज नॉट देयर. फ्यूजन ऑफ द गमीट को क्या बोलता है? fertility, fertilization, sorry, fertilization is also not happening. Fertilization of gamete is not happening. Only एक organism without gametes वो क्या बनाते हैं? उसकी offspring को बनाते हैं. So there is no fusion of gamete. Okay, and the offsprings will be identical to the parent. Parent कैसे दिखता है? उसकी तरह से ही दिखता है उसका offspring. उसको एक नाम बोलते हैं. Yes, clone. तो asexual reproduction को हम cloning भी बोल सकते हैं. क्लोन प्रोड्यूस करता है ना. तो अगर मान लो मैं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, मेरा क्लोनिंग हुआ है, तो मेरा ऑफस्प्रिंग कैसे दिखता है? बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है. 100% मेरा जैसा ही सिमिलर होगा. ओके, तो जैसे मूवीज में होता है ना, शाहरुख खान फादर की रोल भी प्ले करते हैं, सन की रोल भी प्ले करते हैं. ऐसा होने के लिए क्लोनिंग होना पड़ेगा. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो कभी भी 100% पापा की तरह या मम्मी की तरह नहीं दिखता है. It will be combination, right? Because there is the fusion of gametes happening. कौन सा gamete यूज कर रहा है हमारी केस में? एग एंड स्पर्म. तो फ्यूजन हो रहा है, तो एग में भी क्रोमोसोम्स है, स्पर्म्स में भी क्रोमोसोम है, तो जीन्स दोनों जगह से आ रहा है. तो तुम्हें पता है लिंगेज बहुत पास पास में जीन्स बैठा है, तो ऐसे ही इनहेरिट करते हैं. so that will be resembling the parent. लेकिन हमारा पूरा जीन्स ऐसे पास पास में नहीं है, तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर चल सकते हैं. पेरेंट्स की, दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टर्स आके और रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं उधर. मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं लिंगेज है तो, एंड क्रॉसिंग ओवर चल रहा है तो नया नया कैरेक्टर्स भी बच्चे में आ सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनहेरिटेंस भी होता है, वेरिएशन भी होता है. चैप्टर की नाम है इनहेरिटेंस और वेरिएशन. इनहेरिटेंस मतलब सिमिलैरिटी विथ आवर पेरेंट्स, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस विथ आवर पेरेंट्स. ये दोनों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन 100% सिमिलैरिटी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. एक को खुद बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ये एक को खुद बैठ के नहीं कर सकते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसमें क्या होना चाहिए? दो ऑपोजिट सेक्स की, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल भी होना चाहिए. तो यूनिपेरेंटल नहीं, वो बाई पेरेंटल होता है. इतना बेसिक डिफरेंसेस पता है. देन एग्जाम्पल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इधर इस स्लाइड में 2 एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में और 2 मैं बताऊंगा. ओके, सर पहले जो दिया है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है? तो कह रहा नहीं, वो अलगे है. फंगस नहीं, ईस्ट तो वो है ना, यूनिसेलुलर है. ये देखिए यूनिसेलुलर लग रहा है, ये मल्टीसेलुलर है. दिस इज अ फंगस कॉल्ड अ ब्रेड माउल्ट, ब्रेड फंगस, राइसोपस. तो राइसोपस में तुम देख रहा है ऐसे बोल स्ट्रक्चर्स. These structures are called a sporangium. What is this? Sporangium. Sporangium के अंदर छोटा स्पोर्स फॉर्म कर रहा है. स्पोर्स इज लाइक सीड्स ओनली, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड. वो ऐसे बर्स्ट होके, क्या बर्स्ट होते हैं? स्पोरांजियम बर्स्ट होके उसके बाहर क्या आते हैं? अंदर से स्पोर आते हैं. और अगर सबस्ट्रेट में इधर गिरा तो क्या होता है? नया राइसोपस जर्मिनेट होता है वहां से. सिंपल. ओके, एंड हमने ये लोअर प्लांट्स में भी पढ़ा है कि ऐसे स्पोर फॉर्मेशन उसको भी होता है. तो रेनी सीजन में मैं बताया, जब समर सीजन होता है तब सूखा होता है, ड्राई होता है लोअर प्लांट्स, एक वो जगह से गायब ही होता है. ओके, लेकिन नेक्स्ट रेन में वो वापस आते हैं उधर, है ना. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब ऐसा है. जहां वो पहले दिखते थे वहां से पूरा खाली होता है मार्च अप्रैल मई में, लेकिन जून के बाद वो वहां वापस ग्रो करते हैं. गायब होने के बाद किसी ने आके ऐसे प्लान किया? नहीं. वो जाने के पहले क्या किया? डिसअपियर. ड्राई होने के पहले क्या किया? स्पोर्स. उसका स्पोर्स वो मिट्टी में डाल के ही गया. So when favorable condition arrived,
इट स्टार्टेड जर्मिनेटिंग। तो ऐसे स्पोर्स बना सकते हैं लोअर प्लांट्स को एज वेल एज फंगस को फॉर फॉर्मेशन, समझा। देन कमिंग टू ईस्ट, ईस्ट में बडिंग होता है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो ईस्ट में और हाइड्रा में भी वही होता है। इधर ईस्ट का डायग्राम दिया है, तो देखो दिस इज पेरेंट ईस्ट, ये मैच्योर है। तो अभी ये क्या होता है, इसकी सरफेस में एक छोटा सा प्रोट्रूशन आया, दिस प्रोट्रूशन को बोलता है बड, का नाम क्या है, बड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस बड इज कॉल्ड अ बडिंग। कभी कभी अंदर बडिंग होता है, कभी कभी बाहर बडिंग होता है। बाहर बडिंग बोलता है तो एक्सोजीनस बोलते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। अंदर हो रहा है तो एंडोजीनस बडिंग होता है। इधर एक्सोजीनस बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा इज आल्सो लाइक एक्सोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग स्पॉन्जस में होता है, स्पॉन्जस है ना, पोरिफेरा। हाँ, सो बड, बड डेवलप किया। ये बड अभी छोटा है, वो मदर की बॉडी में ही अटैच किया है। अभी उसको क्या करना, अभी डिटैच नहीं कर सकते, उधर बैठ के थोड़ा मेच्योर होना चाहिए, है ना। सो मेच्योरेशन विल टेक प्लेस, ओके। और नया 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 बर्ड्स इसमें से ऐसे डेवलप कर सकते हैं, न्यू बर्ड्स आर आल्सो डेवलपिंग। इसके बाद क्या करते हैं, मेच्योर होने के बाद सब नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद वापस ईस्ट बनता है। वो भी मेच्योर होने के बाद सेम प्रोसेस अंडरगो करते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईस्ट को, समझा। यस, इसी तरह क्यों कौन करते हैं, हाइड्रा, हाइड्रा इज बिलोंगिंग टू फाइलम सीलंड्रेटा, सीलंड्रेटा जेलीफिश की फाइलम में। तो उधर भी वैसा होता है, हाइड्रा इज लुकिंग लाइक दिस ना, ऐसे टेंटेकल्स होता है उसको, उसकी बॉडी से ऐसे मिनिएचर हाइड्रा विल डेवलप। बाद में ये भी थोड़ा सा इलोंगेट होता है, मेच्योर होता है, बाद फिर जाता है, देन उसका नेक्स्ट प्रोजेनी चलता है। सो टू टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया, एक है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है बडिंग। देन अगेन अनदर टू दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक है रीजनरेशन, दूसरा है बाइनरी। रीजनरेशन ऑकर्स इन प्लानेरिया। मैंने प्लाटीहेल्मिन्थ क्यों बोला, बिकॉज प्लानेरिया इज बिलोंगिंग टू विच फाइलम, प्लाटीहेल्मिन्थ फाइलम, ओके, प्लाटीहेल्मिन्थस। तो देखो ये दिस इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये क्या स्टडी करने के लिए यूज करता है, जेनेटिक स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, एज वेल एज रीजनरेशन स्टडी करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लानेरिया। मान लो मैंने प्लानेरिया को ऐसे इधर 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 पूरा मैंने काट दिया, छोटा छोटा पीस में भी काट दिया, ओके। तो जितना सेगमेंट्स मिल रहा है वो सब एक नया प्लानेरिया में डेवलप होता है। मतलब जिसको अभी मान लो मैंने एक ही प्लेन में कट किया, इमेजिन दैट आई कट इन एक ही प्लेन, ओके। तो अबव जो प्लेन होता है उसमें हेड है, नीचे जो होता है प्लेन होता है उसमें टेल है। तो इसको क्या है, अभी नया टेल डेवलप करना पड़ेगा, इसको क्या है, नया हेड डेवलप करना पड़ेगा। तो वैसे वो दो दो नया बना सकते हैं। अगर मैंने 100 पीस बनाया तो 100 न्यू प्लानेरिया बनाए। तो इसी तरह एक्सट्रीम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में, एंड इट इज बिकॉज उसके अंदर स्टेम सेल्स रहते हैं। तुम्हें पता है ना, स्टेम सेल की वजह से हमें कोई भी सेल बना सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू डू दैट। लेकिन हमको क्या है, स्टेम सेल्स है हमारे अंदर, लेकिन पूरा बॉडी बना नहीं सकते हैं ना हमारा स्टेम सेल्स को। दैट दैट कैपेसिटी इज लिमिटेड टिल आवर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो इनर सेल मास होता है ना, उसको टोटीपोटेंसी रहता है, टोटीपोटेंसी नहीं बोलते, प्लूरीपोटेंसी रहता है। प्लासेंटा छोड़ के बाकी सब बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद एम्ब्रियो बना है तो पोटेंसी कम होना है। तो हमको रीजनरेशन नहीं है, लेकिन हमारा कुछ कुछ ऑर्गन्स रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे लिवर करते हैं। नाउ कमिंग टू asexual reproduction की फोर्थ टाइप, बाइनरी fission in bacteria. तो बैक्टीरिया, यू नो दैट बैक्टीरिया इज ओनली हैविंग ए सिंगल सेल। ये क्या है तन्वी, रिंग शेप के अंदर न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है। इज इट अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट को न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। yes. तो ये फिर क्या है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड डैश,
जो बायोटेक्नोलॉजी में हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। पी से शुरू, प्लाज्मिड, दिस इज प्लाज्मिड। तो क्या करना, प्लाज्मिड में उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करना, वो पहले डुप्लीकेट करना, क्योंकि अभी 2 बनाने के लिए जा रहा है। तो पहले प्लाज्मिड डुप्लीकेट किया ना, 1 2, फिर इसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होके दोनों अलग अलग होते हैं। हो गया ना। तो बाइनरी फिशन, बाई मतलब 2, तो एक ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग इनटू 2 एंड फॉर्मिंग 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये बाइनरी फिशन और ऑर्गेनिजम्स में भी करते हैं, जैसे पैरामीशियम होता है और यूग्लिना होता है, उसमें भी चलते हैं। यूग्लिना कैसा है, ऐसे दिखता है ना यूग्लिना। ओके, तो यूग्लिना में डिवीजन ऐसे होते हैं, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होता है। बाइनरी फिशन ऑकर्स इन दिस प्लेन। देन पैरामीशियम में है, पैरामीशियम तुम्हें पता है ना, जिसमें छोटा छोटा सीलिया रहता है, इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। लॉन्जिट्यूडिनल भी रहते हैं, ट्रांसवर्स भी रहते हैं। तो बैक्टीरिया में ट्रांसवर्स हुआ ना अभी, देखा ट्रांसवर्स हुआ है इस प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में हो, लैटिट्यूड वाइज, नॉट इन लॉन्ज। ठीक है, तो तुम्हें समझा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल दो तुम बोलो, दो तुम बोलो। बडिंग एंड रीजनरेशन, हाँ। बाइनरी फिशन एंड सबसे पहले राइसोपस में फॉर इजी। बोला ना, सबको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो वी कैन से कौन किस किस को रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मैंने बोला ना इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स रहता है। ओके, ये सब हमने 12th में पढ़ते। व्हाट इज एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसका ऑप्शन है ना, आईवीएफ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नाउ वर्कर भी, हाँ, एक हनीकॉम्ब पॉपुलेशन में 3 कास्ट रहते हैं, कौन कौन सा है नंदिनी? वर्कर, क्वीन, ड्रोन। इसमें फीमेल्स कौन कौन है? वर्कर। सो वर्कर इज फीमेल, लेकिन उसको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है। ओनली क्वीन इज द ओनली फीमेल विच इज रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल इन ए हनीकॉम्ब कॉलोनी। मेल सब फर्टाइल है, ड्रोन सब फर्टाइल है, लेकिन फीमेल में एक ही फर्टाइल है। भाई इसको फर्टिलिटी नहीं है। यस, रॉयल जेली नामक सब्सटेंस वो वर्कर भी बना के एक को खिलाते हैं, तो दैट इज द क्वीन। तो क्वीन को ये रॉयल जेली खाने की वजह से फर्टिलिटी मिलता है। ये खाया नहीं ना, नहीं मिलेगा। तो दीस आर ऑल्सो लिविंग ना, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट दे आर लिविंग। So we can say reproduction is not the defining character of a living organ. जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो भी लिविंग ही है। म्यूल, क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ा ना 12th में, तो म्यूल क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। तो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो, रिप्रोडक्शन हुआ तो तब बनता है कौन? म्यूल। ये म्यूल को बच्चा नहीं होता है, म्यूल इज स्टेराइल, फ्यूचर जनरेशन उसको नहीं होता, बट म्यूल इज लिविंग ना। So these are some examples of infertile organs. Then जैसे जब मैंने पूछा ना पहले व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, तो नंदिनी ने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म बोला। मेटाबॉलिज्म इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ ए लिविंग ऑर्गन। So metabolism means it is the sum total of all reaction taking place in our body. So we can say दो type of metabolism are there. एक है anabolism, एक है catabolism. I'll write. Okay. So metabolism, there are of two. Catabolism and anabolism. Catabolism means, तन्वी guess करते हो? Catabolism, breaking down. Yes. Catabolism is the breaking down process. Anabolism is the building up process.
ओके, तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने को बोलता है एनाबोलिज्म। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनाने को बोलता है कैटाबोलिज्म। ओके, कैट छोटा है ना, तो बड़े से छोटा में कन्वर्ट करने को बोलता है कैटाबोलिज्म। तो देखो, कैटाबोलिज्म की एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6, उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट है ना पायरुविक एसिड, उसमें 3 ही कार्बन रहता है, तो 6 कार्बन से 3 में कैटाबोलिज्म। पायरुविक एसिड आगे जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के बाद वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी जाएगा और एनर्जी हमें दे देंगे। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, और वी कैन से डाइजेशन, दैट इज आल्सो व्हाट कैटाबोलिज्म है ना। डाइजेशन में मान लो सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं तन्वी, सलाइवरी अमाइलेज तो कौन सा फूड, फूड में क्या है, स्टार्च। स्टार्च इज ब्रेकिंग डाउन इनटू माल्टोस, और स्पेसिफिकली बोला तो जस्ट ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। माल्टोस ब्रेक डाउन किया तो 2 ग्लूकोज ही मिलेगा। यस, स्टार्च टू ग्लूकोज, दैट कन्वर्शन इज डन बाय सलाइवरी अमाइलेज, so that is what catabolism. So digestion. Anabolism, anabolism is building up, right? अभी मैंने C6H12O6 ब्रेक डाउन करने के बारे में बोला। C6H12O6 फॉर्म करने को क्या बोलता है? यस, ग्लूकोज फॉर्म करना है फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या क्या चाहिए ना तन्वी? सनलाइट, हाँ सनलाइट चाहिए, हाँ वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यस, क्या क्या मिलेगा? ग्लूकोज, O2 and small amount of water vapor also there. Yes, so that is photosynthesis is an example of anabolism. Respiration and digestion are examples of catabolism. That समझा? Metabolism is a defining character because जो जिंदा है उसके अंदर एक होता ही है. It is a defining character. Now coming to इसका और explanation दिया है, मैंने already बोला, फिर भी देख लो. Molecule, this is what complex molecule. यहाँ क्या है? Complex, बड़ा है ना, वो सिंपल में स्मॉलर में कन्वर्ट किया, तो इसे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, तो कैटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। तो एनर्जी इज कमिंग आउट, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एटीपी मिलेगा ना हमें, ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया तो कितना एटीपी मिलेगा, याद करके बोलो। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन किया तो 38 एटीपी। देन इधर देखो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलके मिलके, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मिलके मिलके ग्लूकोज बन रहा है, तो दैट इज लाइक स्मॉलर से कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, उल्टा। तो दिस इज एनाबोलिज्म। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एंडरगोनिक, अंदर चाहिए ना। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शन भी है, डार्क रिएक्शन भी है। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बना रहा है, लेकिन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट रिएक्शन में बना के रखना पड़ेगा, एंड एनर्जी को यूज कर रहा है डार्क रिएक्शन। तो यूजिंग द एनर्जी, दैट इज occurring in anabolism. Producing the energy, that is occurring in catabolism. Well understood? तो हमने अभी तक कितना कितना कैरेक्टर्स डिस्कस किया? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ कैरेक्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तुम लोग ही अपने आप बोलो, सेल द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स ग्रुप करके एग्रीगेट ऑफ सेल्स को बोलता है टिश्यूज। तो टिश्यूज कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ओके, जैसे हमारा ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, उसमें बहुत सारे सेल्स है ना, WBC, RBC, प्लेटलेट। तो सेल्स मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यूज मिलके क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, हाँ, तो हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम्स। तो वी आर एन ऑर्गेनिज्म। जैसे इधर माउस को एक ऑर्गेनिज्म बुलाया,
तो माउस मामल है, हम भी मामल है, तो हमारे अंदर या माउस के अंदर कौन कौन सा सिस्टम है? एक एग्जाम्पल तुम बोलो, एक नहीं दो तीन बोलो, तो दो तीन तुम भी बोलो। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, रेस्पिरेशन बोला। ओके, तो ये सब होता है ऑर्गेनिज्म में। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन to form tissue, tissue form organ form organ system form an organism। डिफरेंट, ये सब नहीं होना चाहिए एक में, हम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए सब हमारे अंदर है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को सेलुलर लेवल तक ही है। जैसे पोरिफेरा हमें बोला तो अग्रीगेट ऑफ सेल ही रहते हैं, टिश्यू लेवल में आता है सीलन रहता। ओके, तो इसी तरह कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म को इधर इधर सेल लेवल पे होगा, नहीं तो टिश्यू लेवल पे होगा, नहीं तो ऑर्गन लेवल पे होगा, ऑर्गन सिस्टम तक नहीं आया होगा, तो भी वो जिंदा है। तो एनी ऑफ दी स्टेजेस में होना चाहिए अगर लिविंग है तो दिस इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर। कम से कम सेल होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए टू से दैट दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। so we can say viruses are at the bridge between living and non living। कुछ साइंटिस्ट बोलता है वायरसेस आर लिविंग। व्हाई इट इज लिविंग? बिकॉज उसको क्या कर सकते हैं, हमारे होस्ट के अंदर जाके उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब करके प्रोटीन बना सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं, अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, हमारे अंदर गया तो, होस्ट के अंदर गया तो इट इज लिविंग। बट इट इज अस बेस्ड ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेल नहीं है। वायरस को बस दो ही चीज है, क्या क्या? एक प्रोटीन कोड रहता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो देयर इज नो सेल फॉर वायरस। असेलुलर है, सेलुलर सेल नहीं होते हैं, तो इसलिए उसको नॉन लिविंग बोलता है कुछ साइंस। समझा? तो लिविंग होने के लिए इसमें से कुछ लेवल पे आना। डन? नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने बोला मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर, अंडरलाइन करना। इसी तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग होता है। द थर्ड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हमें बाहर से स्टिमुलस मिल रहा है। मान लो इस क्लासरूम में क्या क्या स्टिमुलस हमें मिल रहा है। हाँ, लाइट कौन सा ऑर्गन से परसीव किया? आईज से परसीव किया। ओके, देन आवाज आ रहे हैं ना, फन की आवाज आ रहे हैं, सो एंड गाड़ी की आवाज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमको बाहर से साउंड, वी आर परसीविंग साउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। देन स्मेल, ओके, वी विल गेट द फ्रेग्रेंस। ओके, इसी तरह अगर कुछ खा रहा है तो टेस्ट भी मिलेगा। ओके, अगर हम किसी को ऐसे टच कर रहा है तो टच इज ऑल्सो अनदर स्टिमुलस। तो ऐसे लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सब हमारा स्टिमुलस होता है, जो बाहर से आते हैं। ये स्टिमुलस से हमारा सेंस ऑर्गन्स परसीव कर रहा है, सेंस ऑर्गन्स कैन परसीव दिस, ऐसे परसीव हो रहा है, एंड हम उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड भी कर रहा है। ओके, अगर मान लो ज्यादा लाइट ऐसे आइस में आया तो क्या करते हैं हम? आइस ऐसे बंद करते हैं ना, दैट इज अ रेस्पॉन्स, बिकॉज हमने परसीव किया, हमारा ब्रेन ने बोला बंद करो आइस। ओके, इसी तरह ओके रिफ्लेक्स एक्शन सब करते हैं ना। ओके, तो अवेयरनेस होता है, वी कैन परसीव द स्टिमुलाई एज वेल एज रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट, इसको बोलता है कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इफ वी आर एबल टू परसीव द स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस स्टिमुलाई, देन वी आर कॉन्शियस। ओके, तो कॉन्शियसनेस ऐसा है डिफाइनिंग कैरेक्टर। बट इसको एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं ना, जो कॉमा स्टेज में है उसको तो कुछ स्टिमुलाई नहीं आ रहा है उसके अंदर, परसीव नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, वो जिंदा है ना, हार्ट बीट कर रहा है, ब्रेन डेथ ही हुआ है मान लो, नहीं तो कुछ बॉडी ऑर्गन पैरालाइज ही हुआ है, स्टिल ही इज लिविंग, ही इज लिविंग। तो वी कैनॉट से, वी कैनॉट 100% ऐसा अश्योर करके नहीं बोल सकते दिस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। एक्सेप्शन है कोमा पेशेंट, दे आर नॉट हैविंग कॉन्शियस रेस्पॉन्सेस बट दे आर लिविंग। बाकी सबको क्या रहता है? कॉन्शियस रेस्पॉन्स। so we are living because we have consciousness। so to sum up, क्या क्या पढ़ा? 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट साइंस ऑफ लाइफ पढ़ा, में से नॉन डिफाइनिंग कौन कौन सा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, देन डिफाइनिंग कौन कौन सा है? मेटाबॉलिज्म,
cellular organization, consciousness, sense organs. And अभी देखो इस सेशन की नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर, नामकरण. ओके, हम सबको बच्चे पैदा हुआ तो क्या करते हैं, नामकरण करते हैं. ओके, सो नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, गिव नेम टू द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड अ नॉमेनक्लेचर. बट ये थोड़ा साइंटिफिकली होना चाहिए, है ना. हमें तो एक वर्ड से नहीं नेम नहीं करना है, कुछ रूल्स रहता है. So before the beginning of binomial nomenclature, there were different types of nomenclature. Who is the father of nomenclature or father of taxonomy? ये पूछता है एग्जाम में. Who is the father of taxonomy? किसने binomial nomenclature invent किया? कार्ल लिन्ने. Okay, so nomenclature is the process of naming a particular organism such that organism is known by only that same word. Okay, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में एक ही अलग अलग वर्ड बोल रहा है एक पर्टिकुलर फ्रूट को, नहीं तो एक पर्टिकुलर एनिमल को, डॉग को. क्या क्या बोल रहा है? कुत्ता बोलते, डॉग नहीं. हिंदी में भी कुछ अलग वर्ड ऐसा कुछ है. मैं एक एग्जाम्पल मलयालम में बोलूं. फॉर पपाया, in some region of Kerala, people will tell papaya only. Okay, in some region they will tell kapalanga. In some region they will tell omakya. Okay, in some regions they will say kapanga. So different एक language में होके भी different accents आया एक particular fruit को. तो different languages compare करके देखो, different nation compare करके देखो, एक ही organism को कितना कितना नाम रहेगा. So it is not easy to track them or to scientifically record them. तो एक यूनिटी होना चाहिए ना. ओके, डाइवर्सिटी नहीं चलेगा इधर. तो एक यूनिफाइड नेम होने के लिए नॉमेनक्लेचर इज वेरी नेसेसरी. ओके, तो हम वी हैव डिफरेंट नेम्स बट वी ऑल आर होमो सापियंस, है ना. तो इसी तरह एक पर्टिकुलर स्पीशीज को एक कैरेक्टरिस्टिक नेम होना, दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. ओके, तो वो नॉमेनक्लेचर से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन मतलब नेम से हमें, मान लो होमो सापियंस में होमो इंडिकेटिंग द जीनस नेम, वो होमो को कुछ कैरेक्टर्स रहेगा ना, तो वो कैरेक्टर्स सब जीनस का कैरेक्टर सब हमें पता चल जाएगा. नाम से ही कैरेक्टर पता चल जाएगा. इजी है ना. नाम से ही हमें कैरेक्टर पता चल जाएगा अगर हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा है. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, उसके पहले का जो सिस्टम है वही पहले बोलेंगे. मोनोमियल नॉमेनक्लेचर, पोली ट्राइनोमियल और एक है पोलिनोमियल. मोनो, ट्राई, पोली. मोनोनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि मोनोमियल में वन वर्ड इज यूज्ड टू राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अभी मैंने बाइनोमियल में दो वर्ड बोला ना, होमो सापियंस. लेकिन ये मोनोमियल में कैसा है कि एक ही वर्ड बोलता. बट इसका लिमिटेशन क्या है कि इसमें इट बिकेम डिफिकल्ट टू यूज यूनिक नेम्स फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एक ही वर्ड है तो तन्वी, कितने तन्वी होते हैं. इसी तरह सिमिलर हो जाएगा, है ना. उधर भी एक तन्वी रहेगा, बाजू की बिल्डिंग में भी एक तन्वी रहेगा, है ना. एक क्लास में भी एक दो तन्वी रहेगा. तो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को सेम नेम आ जाएगा अगर मोनोमियल नॉमेनक्लेचर. So that is the drawback of this naming. तो लोगों ने क्या किया, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर चूज किया. ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या रहेगा, 3 नेम्स होता है. एक को जीनस नेम, दूसरा स्पीशीज नेम और तीसरा सब स्पीशीज नेम. जैसे नंदिनी की फुल नेम क्या है, हाँ, नंदिनी प्रदीप शुक्ला. इसी तरह 3 पार्ट्स होता है नेम का. ओके, तो हियर यू कैन सी एक एग्जांपल दिया है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस. इसमें कॉर्वस क्या है, जीनस नेम. कौन है ये कॉर्वस, क्रॉ होता है. हाँ, कॉर्वस जीनस नेम, स्प्लेंडेंस स्पीशीज नेम. स्पीशीज के अंदर
सब स्पीशीज होता है, दैट इज स्प्लेंडेंस इज द नेम ऑफ द सब स्पीशीज ऑल्सो। तो ये भी बाद में डिफिकल्ट हो गया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। व्हाई? बिकॉज सब स्पीशीज की कैरेक्टर डिफाइंड नहीं रहेगा। मान लो एक ही स्पीशीज में मैंने 5 सब स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, एक ही स्पीशीज में 5 सब स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, लेकिन 5 को डेफिनेट कैरेक्टर नहीं है, डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। मान लो होमो सापियंस में मैंने अलग अलग होमो सापियंस में भी अलग अलग राइसेस मैंने आइडेंटिफाई किया, वो सबको मैंने एक एक सब स्पीशीज में डाला। So that is not accurate because some human को क्या करते हैं, दो दो सब स्पीशीज की कैरेक्टर ओवरलैप करते हैं। So we cannot say that oh ये इंसान वो ये सब स्पीशीज का है, ये इंसान ये सब स्पीशीज का है। We cannot particularly fix one organism into one subspecies, वैसे नहीं कर सकते। स्पीशीज तक क्लासिफिकेशन वेल बाउंड्री होगा, लेकिन सब स्पीशीज आया तो बाउंड्रीज ओवरलैप करते हैं, कैरेक्टर्स ओवरलैप कर सकते हैं, तो इसकी वजह से सब स्पीशीज इंक्लूड करना अच्छा नहीं है। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कार्डेड लेटर। देन पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल में एक छोटा सा नाम सुनो, रानुनकुलस कालीसिबस रेट्रोफ्लेक्सिस पेडनकुलस पाल्काटिस कोटे रेक्टोफोलियस कॉम्पोसिटस। बटर कप की साइंटिफिक नेम है ये। बटर कप जैसे हम फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी पढ़ा है ना, तो डिफरेंट हेट्रोफिली पढ़ा है, डिफरेंट लीफ होते हैं, उधर बटर कप की एग्जांपल राउंडकुलस देखा है हमने। तो बटर कप को उसकी पूरा कैरेक्टर उसके नाम में दिया है। देखो मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूंगा। राउंडकुलस कालीसिबस, राउंडकुलस इज द जीनस नेम, ओके। कालीसिबस रेट्रोफ्लेक्सिस मतलब उसकी कैलिक्स कैसा है, रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स मींस पीछे की तरफ है, इट इज टर्निंग बैकवर्ड्स। देन pedunculus palcatus. Pedunculus palcatus means curved flower stalk. You know, peduncle is the flower stalk. Peduncle is the flower stalk. मान लो this is what pedunculus, फ्लावर की स्टॉक होता है। तो पेडंकल क्या है, कर्व्ड होते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। देन इरेक्ट स्टेम को बोलता है कोले इरेक्टो, इरेक्ट स्टेम। देन फोलियस कंपोसिटस, फोलियस का मतलब लीफ होता है, कंपोसिटस मतलब कॉम्पाउंड लीफ, कॉम्पाउंड लीफ है। तो पूरा कैरेक्टर, लीफ का कैरेक्टर, सपल का कैरेक्टर, फिर क्या पिडंगल का कैरेक्टर, ऐसे वेल डिफाइंड जो उसका कैरेक्टर होता है वो सब नाम में ही दिया। ओके, तो कैरेक्टर के साथ नाम डाला, इतना लंबा हो गया, ये प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, तो याद करना बहुत डिफिकल्ट। तो इतनी मुश्किल नेम नॉमेनक्लेचर सीधे क्या किया हमने, we didn't appreciated this classification, we discarded it later. Understood? Now coming to binomial nomenclature, which is widely used now. दो दो नाम रहता है, दो दो नाम मतलब दो पार्ट्स रहता है, एक नाम ही है, दो पार्ट्स रहता है। सबसे पहले क्या है, जीनस, सेकंड नेम स्पीशीज। एक एग्जांपल देखो, मांजिफेरा इंडिका। मांजिफेरा इज द जीनस नेम, इंडिका इज द स्पीशीज नेम, एंड दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। यस, तो जेनेरिक नेम आते हैं पहले, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज नेम आते हैं सेकंड, जैसे हमारा सरनेम होता है ना, इसी तरह दो दो नेम। हाँ, तो ये किसने बोला, मैं बोला ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनेयस, इन्होंने ही दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एमसीक्यू में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, हु प्रपोज्ड नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कार्ल लिनेयस। तो उसकी कुछ बुक्स रहते हैं जिसके अंदर उन्होंने इसे पब्लिश किया है, डिफरेंट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसका बुक्स की नाम है स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचुराe। सिस्टमा नेचुराe इज वेरी फेमस बुक ऑफ कार्ल लिनेयस। सिस्टमा नेचुराe में उन्होंने 4400 एनिमल्स का और 7700 प्लांट्स का नाम बाइनोमियल में डाला है। ओके, बाद में अभी सब ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई किया तो उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही डालते हैं। ओके, नाउ ये नॉमेनक्लेचर की यूज क्या क्या है, इट इज रिप्लेसिंग मल्टीपल वर्नाकुलर नेम्स। वर्नाकुलर नेम मैंने बोला ना, अलग अलग रीजन में अलग अलग नेम होता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो मल्टीपल नेम्स
वो खत्म करने के लिए एक यूनिफाइड नेमिंग सिस्टम आया। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनेबल पीपल टू अराइव एट द सेम नेम, है ना। तो मान लो मुझे एक बटरफ्लाई मिला, तन्वी को भी एक बटरफ्लाई मिला, और दोनों की फीचर्स सेम सेम है, सब फीचर्स सेम सेम है, तो दोनों का नाम भी सेम होना चाहिए। मतलब जिसको सिमिलर फीचर है, सब सिमिलर फीचर है तो सेम नाम होगा, मतलब दो ऑर्गेनिज्म सेम होगा। जा, then ensures that a name has not been used for more than one non-organism. ओके, मतलब एक के ज्यादा ऑर्गेनिज्म को सेम नाम नहीं आना चाहिए। होमोसापियन ओनली ह्यूमन बीइंग को ही डालना पड़ेगा, समझा। मांजिफेरा इंडिका कोकोनट को मत डालो, वो मैंगो को ही डालना। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करके पढ़ना है। इस चैप्टर के सवाल यहाँ से आते हैं। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन विच लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज। ओके, अगर हमारे नाम से भी डाल सकते हैं, लेकिन लैटिनाइज करके डालना पड़ेगा। ओके, देन they are latinized or derived from Latin irrespective of their origin. इधर लैटिन नेम होना चाहिए, नहीं तो कुछ अदर लैंग्वेज को लैटिन में ट्रांसलेट करके डालना पड़ेगा। ओके, सो लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ नॉमेनक्लेचर। सेकंड रूल, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम। होमो सापियंस में होमो इज द जीनस नेम, while the second component is species specific epithet. Then वो कैसे लिखता है? Both the words in a biological term when hand written किया तो separately underline करना पड़ेगा। कुछ साइंटिफिक नेम पूछा है एग्जाम में, लिखने का जरूरत आया नहीं आया ना, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसे पूछता है। एक बार टीएच मॉर्गन ने लिंकेज कौन सा ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये पूछा था एग्जाम में। तो कैसे लिखना चाहिए? ड्रोसोफिला अंडरलाइन, हाँ मेलानोगास्टर अंडरलाइन, वैसे नहीं किया। तो जैसे मैंने बोला हैंड रिटन कर रहा है तो अंडरलाइन करना चाहिए। एंड लेटर्स कैसे होना चाहिए? सेपरेटली अंडरलाइन, और प्रिंट कर रहा है तो इटैलिक्स में करना। एंड लेटर्स नीचे बताया है, द फर्स्ट वर्ड जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी पूरा लेटर स्मॉल। स्पीशीज का ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल, तो एक ही कैपिटल लेटर आते हैं, वो किधर? जीनस का फर्स्ट लेटर, बाकी सब स्मॉल। डन। तो मांजिफेरा इंडिका लिन, लिन क्या है? लिनेयस ने लिनेयस डिस्कवर किया है उसको, इसलिए उसका नाम डाला। ओके, तो हमारा ऑर्डर की नाम भी क्या कर सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हैं, दैट इज अनदर ऑप्शन। तो मेनली दो नेम्स होना चाहिए, दो पार्ट्स होना चाहिए, मांजिफेरा इंडिका जीनस स्पीशीज। देखो एम कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम कौन करता है? जैसे हम केमिस्ट्री में बोला तो हु इज नेमिंग? IUPAC इज नेम। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने के लिए बैठा है, इसका नाम है नामकरण करना। ओके, इसका काम है नामकरण करना। तो सोचो, फर्स्ट वन हमारे एनसीईआरटी में दो ही फोकस किया है, ICBN एंड ICZN, लेकिन बाकी भी पढ़ना है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स का नाम ये करते हैं। एंड इधर में एक चीज बोलो, अगर वो प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं, जैसे राइस व्हीट, इसी तरह फूड क्रॉप्स यानी कैश क्रॉप्स होता है, तो उसको क्या होता है? ICNCP नाम कर सकते हैं। ICNCP क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ, उधर तक सेम है, कल्टिवेबल कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो ICBN ऑल प्लांट्स को कर सकते हैं, उसमें जो कल्टिवेबल है उसको ICNCP करना पड़ेगा, कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। देन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब एनिमल्स की नॉमेनक्लेचर करता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, देन
वायरस को नाम करने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर ICVN, ICBN, ICZN, ICBN, इधर इतना इजी है। इधर देखो ICBACN, ICBACN, बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एंड फिर और एक है ICNCP ऑलरेडी बोला है। So there are 5 different organizations naming for naming organisms. Which are they? ICBN, ICZN, ICVN, CP, and IC back N. Okay. Tautonym क्या होता है? It's a scientific name in which the same word is used for both genus and, for example, Vulpes, Vulpes. रेड फॉक्स की साइंटिफिक नेम है, इसमें जीनस भी सेम है, नाम सेम है, स्पीशीज का नाम भी सेम है। ऐसे दो दो सेम नेम है तो इसको बोलता है टोटोनिम। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, समरी देखो। ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की चीफ साइंस पढ़ा है, लाइफ की ग्रोथ, देन उसका टाइप सब दिया है, रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो इधर नहीं दिया है, यस कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म डिस्कस, हाँ यहाँ है कौन। देन व्हाट इज टोटोनिम, साइंटिफिक नेम की दो दो पार्ट सेम है तो। देन नोमेनक्लेचर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, कौन सा सबसे अच्छा है, ने डिस्कवर किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्लिन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे, इसमें हम एक ऑर्डर पढ़ते हैं ना, स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, माने ऊपर से बोलो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो पढ़ते हैं। तो आज की क्लास अच्छे से समझा तो कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं।